Hello, student of 9th class. Your first chapter is the story of village Palampur of economics. You know that story of village Palampur. It means in this chapter we will study about village. It means economy of village economy of our country. That what are their major activities, what are their means of production. These are the things we will discuss in this chapter. Okay, story of village Palampur. It means through actually this is not a real village of our country. This is an imaginary village. One thing, student, first in villages, what is the main economic activity? I discussed in first lecture that economic activities is purpose. A purpose of economic activities is earning money. So if you see, if you from village, you will find that major activity of rural people is farming. They are engaged in agricultural activities. But we also find some other activities in villages. What are they? Small scale manufacturing, dairy, transport, shop, kirana shop, grocery shop, and blacksmith, carpenter, barber. These other occupations also are in villages. These are occupations and major economic activities. Every activities are done for purpose of money. Okay, you have understood, I hope, that major activity of villages is farming, and apart from farming they are also engaged in other type of economic activities. Okay, student, now we will study imaginary village Palampur here. Okay, actually this is an imaginary village. Suppose this is Palampur. Palampur is from near about 3 kilometers far away from Palampur. There is a neighboring village, that is Raiganj. Raiganj, sorry. And further एक town है, that is Shahganj, शाहपुर है, शाहपुर. एंड एवरी टाइम इस गांव में खासियत है कि एवरी टाइम ये वेल कनेक्टेड है, रोड ट्रांसपोर्ट बहुत वेल डेवलप्ड है. एक इमेजिनरी विलेज है, आपको बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं लेना है. यू डोंट हैव टू टेक कॉम्प्लेक्स दैट. आप एक गांव की इकोनॉमी देखो, एक गांव है, इमेजिनरी गांव है. जैसे आप अपने गांव को मान लीजिए, हम वहाँ देखते हैं कि बगल में एक रायगंज गांव है, उससे दूर थोड़ा एक टाउन है, सिटी शाहपुर है. और यहाँ पर लगभग जितने भी लोग खेती करते हैं सब लोग की इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल से चलते हैं. ट्यूबवेल जो है इलेक्ट्रिक से चलते हैं. ठीक है, लगभग यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल, हेल्थ सेंटर है, ठीक है, केमिस्ट शॉप है, इट मीन्स मेडिकल शॉप. ये सब चीज़ें वेल डेवलप्ड हैं पालमपुर में. और भी चीज़ों को हम देख सकते हैं. विलेज में लगभग नियर अबाउट 450 फैमिलीज हैं. नियर अबाउट 80% जो फैमिली है दे बिलोंग फ्रॉम अपर कास्ट. They belong
near about 80% belong from upper caste and live in bangla and pakka house, and 20% they are Dalit and live in mud and घास फूस वाले घर में. ओके और सबसे ज़्यादा लैंड ऑन करते हैं ये अपर कास्ट के लोग ऑन करते हैं. ठीक है. हियर वी आर लुकिंग दैट इन पालमपुर एक गांव है. ठीक है. पालमपुर जो गांव है वहाँ पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी भी घर घर में है, रोड कनेक्टिविटी भी घर घर में है, मेडिकल सेंटर भी है, हेल्थ सेंटर भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, एंड लोग कहीं ना कहीं एक्टिविटीज कर रहे हैं. और ये जो डिस्क्रिप्शन जो हम देख रहे हैं इस स्टोरी का, इस गांव के स्टोरी का, एक्चुअली इसी गांव के सभी एक्टिविटीज को हम देख करके ये समझने का प्रयास करेंगे कि लोगों की एक्टिविटीज क्या होती है. ओके. through the story of village Palampur we will try to understand that what are how villagers are engaged in production. ओके. ये जो डिस्क्रिप्शन हमें जो देखने को मिल रहा है इससे पता चल रहा है कि पालमपुर इज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन एंड स्कूल, हेल्थ सेंटर्स. कंपेयर दीज फैसिलिटी विद दोज इन योर नियर बाई विलेज. इन सब चीज़ों को अपने विलेज के से कंपेयर कर सकते हैं. और क्या है, ये डिस्क्रिप्शन हो गया. ठीक है. नाउ थ्रू दिस स्टोरी वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फार्मिंग एक्टिविटीज. यू नो दैट देर आर टू टाइप फार्मिंग and non-farming. We will find in village Palampur there are two types of activities, farming and non-farming activities. Further we will study about this. I hope if you have any confusion about Palampur village, you just read your NCERT and try to understand the description of this chapter. Now इसी वीडियो में we will try to understand factor of production only. Okay. Factor of production. What is production? Production is simple. In simple language you can understand that production is transforming raw material into more valuable product. Okay. It means manufacturing, produce करना, producing anything. Okay. Production. अब for production, what is the main purpose of production? You know that I told you we have need and want. To fulfilling our need and want, we have to produce something. यानी aim of production is to produce the goods and services that we want. Aim of production is to produce goods and services that we want. To complete our need, to fulfill our need, and for production some factors are necessary and needed. What they are? First land is mean bhumi. For any production, land is basic and first factor of production. Suppose that any factory produced this marker. I always take this marker as example. But this marker is not produced in sky. कि हवा में उड़ रहा है और ये मार्कर वहीं से गिर रहा है बद्द पानी की तरह. ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना. इसकी प्रोडक्शन के लिए जो भी यूनिट्स सेटअप की गई हैं वो लैंड पे की गई हैं. यानी आपका कोई भी, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो, चाहे किसी गुड्स का प्रोडक्शन हो, चाहे मोबाइल का प्रोडक्शन हो, चाहे स्टैंड का प्रोडक्शन हो, चाहे बोर्ड का प्रोडक्शन हो, चाहे मोबाइल का प्रोडक्शन हो, चाहे पेन का प्रोडक्शन हो, चाहे आपके क्लॉथ का प्रोडक्शन हो, चाहे आपके कान, नाक, गला, त्वचा, चाहे जहाँ पहनने वाले कोई
कमोडिटीज हो, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन जो है वो को क्या है, दैट इज फर्स्ट नीड इज लैंड. ओके, लैंड. Land, it means first requirement is land and other natural resources such as water, forest and mineral. इसमें आप ये भी कर सकते हो लैंड में, such as water, it means natural resource. वाटर इट मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज. आप एक कंबाइन में आप कर सकते हो. ओके, वाटर को रहने ही दे रहे हैं आप, नेचुरल रिसोर्स कह दिए तो दैट्स ओके. नेचुरल रिसोर्स में वाटर और वाटर, एयर, जो भी आप जिसको आप सोचें, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, सब कुछ. सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर. सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर. लेबर में आपको स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर की जरूरत होगी. प्रोडक्शन के लिए आपको अब दूसरी आपकी जरूरत क्या पड़ेगी, श्रम की, मेहनत की. इसको करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको यू गॉट लैंड एंड प्रोडक्शन स्टार्टेड विदाउट एनी लेबर, विदाउट एनी वर्क. तो सेकंड इज लेबर. तो फॉर प्रोडक्शन वी नीड सम स्किल्ड लेबर, इंजीनियर और टेक्नोलॉजी के साथ, एंड सम अनस्किल्ड लेबर जो थोड़ा कम कुशल श्रमिक होते हैं. और तीसरी एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है. थर्ड इज फिजिकल कैपिटल. कैपिटल फॉर प्रोडक्शन, everything which we invest to produce for getting return back, this is called capital. Okay, फिजिकल कैपिटल जो चीज़ दिखता है, जैसे लैंड फिक्स है, ठीक है, दैट फर्स्ट. लेबर दैट अदर फैक्टर. फिजिकल कैपिटल में आपको कई चीज़ें आप जोड़ सकते हो फिजिकल कैपिटल में. जैसे आप टूल्स, दो कैटेगरी में इसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं. जैसे टूल्स हो गई, मशीन्स हो गई, और क्या टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो जो दिया, टूल्स, मशीन, बिल्डिंग. ओके, ये सब चीज़ें, बिल्डिंग, ETC. एंड सेकंड रॉ मटेरियल. मनी टू फाइनेंस. ओके, प्रोडक्शन के लिए हमें टूल की जरूरत होगी, मशीन की जरूरत होगी, बिल्डिंग की जरूरत होगी, इन सब की जरूरत होगी, तभी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं. सपोज दैट बेटा आपका मन क्या कि इंटरमीडिएट पास होंगे तो आप जूते की दुकान खोलेंगे. सपोज जूते की दुकान खोलना, जूते की दुकान खोलना है तो उसके लिए क्या करना है, पहले कहीं अड्डा खोजना पड़ेगा ना, जमीन, तो लैंड. फिर आपको मजदूर भी रखना पड़ेगा, जानकार. अगर आप जानकार हैं तो आप ही मजदूर हो गए. लेबर एंड फिजिकल कैपिटल आपको टूल्स, थोड़ी सब, मशीन, बिल्डिंग, घर रही है, और रॉ मटेरियल जो आप लेदर लेकर आओगे वो लाओगे, और मनी जो सर्कुलेट करती रहेगी लेन देन में, ट्रांजैक्शन में, रॉ मटेरियल को खरीदने में, सेल करने में, उसको ट्रांजैक्शन में. ठीक है, इसको जो कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल. इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल. उसको क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल. दिस इज वर्किंग कैपिटल. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ओके, एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं चीज़ों को. इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, यू फर्स्ट, एंड फैसिलिटीज, एंड जो वहाँ पर जो चीज़, वहाँ के हमें स्ट्रक्चर ऑफ विलेज पालमपुर हमने समझा. फिर हम पढ़ रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हम आपको ये पेन प्रोडक्ट, आपको कल बिजनेसमैन बनना है, आपको ये प्रोडक्शन इसका करना है. आपको क्या क्या ज़रूरत होगी, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ओनली. ठीक है, नहीं तो बहुत ज़रूरत होती है.
उसमें करेज की भी ज़रूरत होती है, साहस की भी ज़रूरत होती है, और भी चीज़ें हैं, बट जो आपके उसमें वो मैं बता रहा हूँ। लैंड की पहली ज़रूरत होगी, आपको हवा में नहीं प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेबर की ज़रूरत होगी, बिना लेबर के कोई इधर से उधर नहीं हो सकता है। फिजिकल कैपिटल की ज़रूरत होगी, टूल्स मशीन बिल्डिंग की ज़रूरत होगी, पैसे की ज़रूरत है, पैसा तो बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से आई होप यू हैव अंडरस्टूड और थैंक यू।